Okay, hi guys, welcome to today's class. It's the third class today in compound interest, and so today हम लोग ये homework discuss करने वाले हैं. Screen दिख रहा है? Can you all see my screen? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, okay, good. So ये 8 क्वेश्चन मैंने भेजे थे लास्ट टाइम होमवर्क के लिए. आर्यन बोल रहा है हाफ किया, तृष्णा ने किया नहीं, और बाकी लोग भी ठीक है. We was done it good, and नहीं तो और जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, you all can do one thing. ये जो रिकॉर्डिंग है, you all can pause the video और फिर जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ तुम लोग भी अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है? ये क्वेश्चंस जो है फिर मतलब सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. ओके, सो अभी हम लोग इसका डिस्कशन ही स्टार्ट करते हैं. सो सर 6 हुए हैं. 6 हुए, ठीक है, चलेगा. ओके, नो ठीक है ना, 2 ही बचे हैं तो ठीक है. तो तुम अभी देखते जाओ सॉल्यूशंस, और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लेना, ठीक है? Okay, so let's start now with the first one. And also, last time की class में we started with these applications, ये compound interest में, and अलग-अलग type के काफी questions किए थे last time. So I hope वो तो सबको समझ में आया होगा. ये depreciation वो सब जो मैंने बताया था कि for some machines, scooters वो सब उसका value reduce होता है after a period of time. So वही किया था लास्ट टाइम, एंड फर्स्ट क्लास में तो बस इंट्रोडक्शन था. ओके, सो टुडे हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे जो था, एंड हाँ तो कुछ भी है तो पूछ लेना. सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द फर्स्ट वन. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ऑन द कंस्ट्रक्शन work of a flyover bridge, there were 320 workers. Initially, the number of workers were increased by 25% per year. Find the number of workers after 2 years. ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है. इसमें दिया है कि कुछ एक कंस्ट्रक्शन ब्रिज है और उसमें देयर आर लाइक 320 वर्कर्स आर देयर, and to the number of workers are increased by 25% per year. Find the number of workers after 2 years. 2 साल बाद ऐसे बढ़ते रहेंगे तो how many workers will be there? So let's begin. So इसमें पहले तो देख लेते हैं एक मिनट सबके रिवीजन के लिए. A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N. Okay, this is the main formula. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल विल बी द इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना, दैट इज 320. सो P इक्वल्स टू 320. देन और ये वर्कर्स है तो लोग है तो रुपीस का साइन या कुछ नहीं आएगा, ठीक है? देन 320. ओके, द नंबर ऑफ वर्कर्स now rate is 25%. Rate is 25%. And N is how much? After how many years? 2 years, na? So N is equal to 2 years. So this is a simple question using that formula. So A matlab 2 साल बाद how many workers will be there? A is equal to P into 1 plus R. Okay, Aryan, I've seen your answer. Let's just check once if it's that. So P is now 320 into 1 plus 25 upon 100 raised to 2. So now we'll take LCM of this. Okay, so 320 into, now LCM of this is 1 upon 1 plus 25 upon 100. So how much does this become? This becomes 100 plus 25 upon 100, है ना? So 125 upon 100 upon upon 100 raised to 2. तो इसको we'll either just directly open this और हम लोग इसको थोड़ा और simplify करेंगे. So ये आर्यन last time भी पूछा था. So divided by 5, 125 divided by 5 is 25. This divided by 5 is 20. Now 25 divided by 5 is 5. 20 divided by 5 is 4. So this is nothing but 320 into 5 by 4 whole square. So let's just open this now. 320 into 5 by 4 into 5 by 4. Okay. So now इसको बस simplify करना है. So now 4 ones are 4. 4 into 8 is 32 na. So that means 4 into 80 is 320. Simple. So 80. Now 4 ones are 4 and 4 twos are 8. So that means 4 20s are 80. So 20. So the answer is 20 into 5 into 5. So now
तो हाँ 20 5s are how much? 20 into 5 is 100 into 5 now. So, and 100 into 5 is 500. So that means the answer comes out to be 500. So क्या है ये statement? Therefore the number of workers after 2 years will be 500. ठीक है, so हो गया simple question. That means पहले there were 320 workers and now the workers become 500. Okay, so मेरे को तुम लोग को एक और चीज समझाना that I want to कि ये क्वेश्चन लॉजिकली भी कर सकते हैं. ओके, दिस इज अ परसेंटेज चैप्टर किया तो ये क्वेश्चन परसेंटेज से भी हो जाएगा. देखो कैसे. सो इनिशियली देयर आर 320 वर्कर्स एंड हर साल 25% वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं. सो लेट्स सी, दिस इज जस्ट अनदर मेथड. ठीक है, तो पहले देयर आर 320 वर्कर्स, राइट, एंड एवरी ईयर 25% इंक्रीज. So now how much is 25% of 320? So let's check 25 upon 100 into 320. So now 25 by 5 is 5, 100 by 5 is 20, 5 ones are 5, 5 4. So and 4 ones are 4 80s are. तो इसको करेंगे. So this is 25% of 320 is 80. So that means every year 25% increase हो रहा है. So after 1 year टोटल वर्कर्स कितने हो जाएंगे? 320 प्लस 80. सो दिस इज 400. और क्वेश्चन में क्या पूछा है? आफ्टर 2 years हाउ मच विल इट बी इफ एवरी ईयर इंक्रीजेस बाय 25%. सो नाउ वील चेक नेक्स्ट 25% of 400. So now again let's see this 25 upon 100 into 400. So 5 5s are 25, 5 20s are 100, 5 1s are 5, 5 4s are, and 400 upon 4 is nothing but 100. Na 4 ones are 4, sorry, and 100. So that means this is 100. So matlab after 2 years, then how much will it be? 400 plus 25% of 400, which is 100. So that means after 2 years it will be 500. देखो आंसर सेम ही आया. This is just a ये मेथड बट मत यूज करना. स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे डायरेक्टली आंसर आएगा. बट मैं खाली तुम लोग को समझाया था कि हाउ यू लाइक ये कैसे हो रहा है. ओके, सो दिस वे आल्सो आंसर केम सेम 500. बट मतलब ये अलग मेथड था बेसिकली, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये मेथड सब लोग को समझा? ये खाली एक अलग थोड़ा बता रहा था. लाइक यू कैन डू दिस इज आल्सो वन वे टू गेट द No, आंसर. sir. क्या क्या No. क्या नहीं समझा इसमें? बोलो, I'll tell you. आर्यन बोलो, इस मेथड में क्या नहीं समझ में आया है? सर 25% ऑफ 320 का आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद 80 आया, ओके, उसके बाद नहीं समझा. हाँ ठीक है. तो देखो, तो ये 3, ओके ओके ठीक है. सो लेट मी चेंज दिस. सो इनिशियली 320 थे, 320. एंड क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ठीक है. क्वेश्चन में दिया है that the number of workers are increased by 25% every year. हर साल 25% से the workers increase. So that means we find out how much is 25% of 320, which is 80. ठीक है, ये तो समझा कैसे आया. ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो. 25 upon 100 into 320. ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लो, आंसर 80 ही आएगा. So that means Yes. if it increases by 25%, that means after the first year कितने वर्कर्स होंगे? कि there will be 320 plus the 25%. तो टोटल में ये 400 हो जाएंगे ना. इतना समझे? देखो, Yes, sir. ओके, इतना ठीक है, समझ लो कि if you increase by 25%. Yes. सपोज मैं, अच्छा तुम्हें समझा, बट दूसरों के लिए अगर किसी को, if someone still didn't understand, अगर if I give you 100 rupees, मैं तुमको ऐसे if I give you 100 rupees and I say I will increase 50% of your money every year. So that means 50% of 100 is nothing but 50. So that means after 1 year you will have 100 plus 50. तो 150 after the 1 year. ठीक है, it ऐसे मतलब समझ लो. तो ये 1 year के बाद 400 हो गए, 400 वर्कर्स. एंड नाउ क्या बोला है? फाइंड नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years. 2 years. एंड एवरी ईयर 25% से इंक्रीज हो रहा है. 25% ऑफ द करंटली कितने वर्कर्स है. तो दैट मीन्स
अभी currently ये 400 became the current number of workers. So now we need to again find 25% of this 400. Understood? And that 25% of 400, देखो ये ऐसे भी देख लो, 0 cut 0 cut, so 25 into 4 is nothing but 100. तो ये 25% of 400 is now 100. And मतलब 2 साल बाद that is also increasing ना. So 400 जो current थे plus 25% of that. So that means it's 500 workers after 2 years. अभी थोड़ा समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये मतलब मेरे को कंफ्यूज नहीं करना था, बट खाली ऐसे समझा रहा था कि हाउ दिस वर्क्स, ये पूरा कंपाउंड टेस्ट कैसे चलता है, लाइक द मैकेनिज्म, मतलब ठीक है। सो ये नहीं भी समझ में आया, इट्स ओके, ये भूल जाओ। खाली ये फॉर्मूला जो है यूज करो, दिस फॉर्मूला ये यूज करो, और मार्क्स इसी के लिए मिलेंगे, वो दूसरे के लिए नहीं मिलते मार्क्स। दैट इज, अगर किसी को और समझना है, दैट्स ओनली फॉर दैम। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, और डायरेक्टली आंसर आ जाता है 500 वर्कर्स। ठीक है, अभी काफी टाइम हो गया फर्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स गो टू द सेकंड वन। सो second is, a shepherd has 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years if the number of sheep increase by 8% every year. तो ये भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ओके, जिसमें इनिशियली उसको कितने थे, 200 sheep थे, एंड आफ्टर 3 years, ओके वेट, सो लेट्स जस्ट, ये ऐसे टाइप में ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो करंटली ही हैज 200 sheeps and in his 3 years rate is 8%, ठीक है। द नंबर, क्वेश्चन पढ़ो जिसने नहीं पढ़ा है, पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड इट। A shepherd has 200 sheep, find number of sheep with him after 3 years if the sheep increase by 8%। बस ये सिंपल 3 डेटा गिवन है, वही 3 यूज करने हैं। सो अगेन a is equal to p1 plus r upon 100 raised to n. So 200 into 1 plus 8 upon 100 raised to 3. This is nothing but 200 into, no, 1 plus 8 upon 100, ठीक है, इसका LCM लोगे, so this becomes 108 upon 100 raised to 3. So now let's open this. 200 into 108 upon 100 into 108 upon 100 into 108 upon 100, ठीक है। So 0 cut 0 cut, and so now this becomes 2 into 108 into 108 into 108 upon 100 into 100। तो ये अभी तुम लोग सॉल्व कर लो, और मतलब ठीक है, आंसर आ जाएगा। ओके, सो द आंसर आर इन गेटिंग इज 11,664। ठीक है, चेक कर लो, एंड ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। अभी इस पे ये कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करना है, उस पर मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ओके, सो बस देख लो, एंड जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ शीप आफ्टर 3 years। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर नीचे का जो, सर नीचे 100 है वो 0 से कट हो जाएंगे ना? ये 108 वाला एंड 100 कौन से 0 से, देखो। सर हाँ दूसरे, सर 108 दूसरे बार लिखा है ना, उसके हाँ नीचे वाला 100, और 108 तीसरे बार लिखा है, उसके नीचे वाला 100, वो एक हाँ, दूसरे से कट हो जाएंगे ना? ओके ओके, अभी ये बात समझोगे, ठीक है, गुड कि तुमने पूछा। ये अभी ध्यान से, ठीक हो, दिस इज अ मतलब वेरी कॉमन मिस्टेक, ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ये जो मैं मेथड यूज करता हूँ 0 को कट करना, तो दिस ओनली वर्क्स इफ बोथ नंबर्स, कॉमन मिस्टेक, 0 सिर्फ कट कर सकते हैं इफ बोथ नंबर्स एंड विथ 0, एंड विथ 0, दोनों में एंड का 0 काट सकते हैं। जैसे देखो 108 अपॉन 100, ठीक है, ये एक है, एंड नेक्स्ट इज 110 अपॉन 100। तो अभी यहाँ पे ये पहले वाले में ये 0 और ये 0 नहीं काट सकते, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, बिकॉज दिस इज 100, ये बन जाएगा 18 अपॉन 10 if we cut it, and ये गलत है, ये नहीं होता, राइट। बट यहाँ पे ओनली इफ द एंड में 0 सर आता मैं है। दूसरा बोल रहा हूँ। क्या क्या, फिर क्या? सर नीचे वाला 100 है ना, वो, और हाँ, थर्ड में से नीचे वाला 100 सिर्फ। यस। मतलब
वो कट नहीं होगा ना, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 100। अच्छा, ओके, वो सर था। नीचे के दोनों जीरो दोनों से कट हो जाएंगे तो। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, देखो ना, नीचे के दो जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से। ये जो 100 × 100 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इस ऊपर वाले से डिवाइड हो रहा है। सो ये जीरोस कट नहीं होंगे। ये हो जाएगा 100 × 100 विच इज 1, ऐसे 1 2 3 4 10,000, 100 × 100। तो ये ऐसे है कि ये जो 100 × 100 ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो ये ऐसे कट नहीं कर सकते। अगर देखो, देखो देखो, एक मिनट, 100 / 100, इसको अभी 0 0 0 0 कट करके 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये राइट है। बट 1/100 × 100 ऐसा है, तो फिर दिस इज नथिंग बट 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10,000 ऐसे। तो ये मतलब नीचे वाले जीरो, नीचे वाले नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सो ऐसे कट नहीं कर सकते। ये 0 0 0 0 ऐसे गलत है, एकदम गलत है, ठीक है, तो ऐसे मत करना, समझे अभी? यस ओके, सो जो तुम मुझसे पूछा ठीक है, बट मेरे को लगा वो दूसरा पूछ रहे, बट ये भी ऐसे इम्पोर्टेंट है कि ये जीरो सिर्फ कर सकते हैं जब द नंबर एंड्स विद 0। एंड ये भी कि 1/, ऐसे 100/100 के केस में ही 0 0 कट होगा। अगर दोनों ऐसे 100 × 100 है और 1/100 × 100 है, देन यू कैन नॉट कट दिस केस और दिस केस, दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, 100 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय विद 100, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। सर बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो अभी क्या बोल रहे हो फिर? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बोलो। सर वो 3 बार 108/100 लिखा है ना, उसके हाँ, दूसरे बार 108/100 है, और तीसरे बार जो है ना उसके 100 डिनोमिनेटर में 100 है ना, वो कट करना बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो कौन सा भी कर लो ना कट, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुमने यहाँ वाले से 100, यहाँ वाले से 0 कट किए या यहाँ वाले से कट किए, फर्क क्या पड़ता है? एज लॉन्ग एज तुम ऐसे, यहाँ ऊपर 2 जीरोस है, तो एज लॉन्ग एज तुम नीचे वाले कोई कोई से भी 2 जीरोस कट करो, फर्क नहीं पड़ता कौन सा वाला है। सर बट वो नीचे के दो जीरो सेकंड और थर्ड में कट होएंगे ना, ये जीरो सेकंड का फर्स्ट जीरो थर्ड से कट होएगा, और वो दोनों जीरो थर्ड से कट होएंगे ना। अह, देखो मैं एग्जैक्टली अभी समझ रहा नहीं हूँ, जो मेरे को देखो। अच्छा, एक सेकंड रुको सर रुको। मैंने किया, वैसे मैं आपको फोटो भेजता हूँ। हाँ ठीक है, फोटो भेजो मेरे को। ठीक है, जल्दी भेजो, हाँ अभी फिर इतना, ठीक है, नहीं तो ओके भेजो फोटो। और बाकी लोग को ये जो कैलकुलेशन है जैसे भी करना है, ऐसे 2 × 108 × 100 × 100 अपॉन 100, या तो फिर ये 108 और 100 को कट करो, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, भेजा। हाँ तो, हाँ वही तो आर्यन, वही तो मैं बोल रहा था पहले कि दिस इज रॉन्ग। ये 18 अपॉन, ये जो तुमने, देखो देखो देखो, जो तुमने किया है, 1, देखो पहले तो 1 + 8/100, ओके। अभी यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 100 का एलसीएम इज 100, तो दिस बिकम्स 100 + 8/100, ओके। तो ये हो जाएगा 100 + 8 इज 108, 180 नहीं होता है कुछ, 108/100। पहले तो ये इतना समझे कि दिस इज, इफ यू एड इट, यस बोलो। यस ओके, एंड नाउ नेक्स्ट, ये जो तुमने 1 + 8/100 की जगह पे सीधा नेक्स्ट स्टेप में 18/100 लिख दिया, ये गलत है ना, ये ऐसे नहीं हो सकता ना, इट्स 108/100। ये जीरो, जो इसका जीरो कहाँ चला गया, वो कट नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ये जीरो कहाँ पे गया, एटीन सर अपॉन बट हंड्रेड वो जीरो मैंने कट नहीं किया है।
तो तुमने एडिशन ही गलत किया है, मतलब 18/100 कैसे आया? बोलो फिर 18/100 कैसे होगा? जो तुमने फोटो भेजा है उसमें यू रिटन 18/100, सो हाउ 18/100 कहाँ से आया? 108/100 होगा ना, वो एडिशन में स्लाइट मिस्टेक होगा। समझे आर्यन? यस सर। पक्का? नहीं तो ठीक है, नहीं तो क्लास के बाद वील टॉक, ओके? अभी के लिए काफी टाइम हो गया इस पे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। कुछ भी आई टेल यू आफ्टर क्लास, ओके? सो ठीक है अभी के लिए, ठीक है। अच्छा है तुमने पूछा, ऐसे काफी ओके। जो दूसरे डाउट्स होंगे दैट आल्सो वुड हैव गॉट क्लियर्ड ओनली। ओके तो चलेगा, नाउ वील कंटिन्यू। ओके, थर्ड क्वेश्चन। In a forest, there are 40,000 trees. Find the expected number of trees after 3 years if the objective is to increase the number at 5% per year. ठीक है, तो अभी यही क्वेश्चन करो जिसमें P will be 40,000, 40,000, N is what? कितने 3 years, N is 3 years and rate is 5%. A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N. ये सेम मेथड है, अभी ये मैं करूंगा नहीं, बट ये हो जाना चाहिए, ठीक है? एंड फिर तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। टिल देन वेट, एंड टिल देन ट्राई सॉल्विंग ये थर्ड वाला, जिसने भी नहीं किया है, तृष्णा, बाकी लोग सॉल्व करो थर्ड वाला। मैंने बता दिया कि P क्या है, N क्या है, R क्या है, एंड तुम लोग को फॉर्मूला पता है, सो यू कैन डू इट नाउ। ठीक है, एंड जिसने भी जो भी वीडियो देख रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग पॉज करके सॉल्व कर लो। आई एम गोइंग टू टेल द आंसर। तो अभी इसका आंसर आना चाहिए, थर्ड वाले का आंसर शुड बी, आंसर विल कम आउट टू बी 46,305। ठीक है, एक बार सॉल्व करोगे दैट विल बी द आंसर। तो मैच कर लो, अगर मैच हो रहा है तो गुड, अदरवाइज कैलकुलेशन चेक कर लो क्योंकि उसमें हो सकती है गलती। ठीक है, तो ये सेम ही टाइप है, फर्स्ट 1 2 3। ठीक है, तो अभी ये हो गया 46,305 ट्रीज। ओके, नेक्स्ट अभी नाउ लेट्स गो ऑन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, the cost price of a machine is, this number is 2,50,000 if the rate of depreciation is 10% per year. Find the depreciation price in the machine after 2 years. ठीक है, तो ये डिप्रीसिएशन का क्वेश्चन है, तुम लोग को ये बताया था लास्ट टाइम, बट ठीक है ये मैं एक ही सॉल्व करूंगा। ओके सो लेट्स बिगिन। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हो। ठीक है, तो मतलब प्रिंसिपल इज 2,50,000, ये रुपीज, रुपीज साइन मत भूलना। ओके, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रेट इज 10%। एन इज क्या, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, एक बार क्वेश्चन खोल के देखो। सो इट इज आफ्टर 2 years। दिस इज अ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। ओके, ये याद रखो। तो फॉर्मूला क्या होगा, A is equal to P into 1 minus R upon 100 raised to 1। प्लस नहीं होगा, दिस विल बी माइनस होगा। ओके, बस यही था क्वेश्चन में, एंड अभी इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स बिगिन। 2,50,000 into 1 minus, ठीक है, ये है। नाउ अभी नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। 1/1 minus 10/100। तो 101 का एलसीएम, 1 and 100 का LCM is nothing but 100. So 100 minus 10/100 raised to 2. So this is 2,50,000, 1 2 3 into 90/100. Okay, whole square. So let's do this fast now. सब लोग करो इसको। 250, 1 2 3 into 90/100 into 90/100। ठीक है, नाउ इतने जीरोस दिख रहे हैं, तो ऐसे इसमें तो तुम लोग को अभी मजा आना चाहिए था कटिंग द जीरो। सो 0 0 कट, 0 0 कट, then 0 0 cut, 0 0 cut। So this is nothing but 25 multiplied by 90 into 90 again। So okay, let's see।
So this is now 25 into 90 into 90. अभी करो ये जल्दी सॉल्व. क्या आएगा इसका आंसर? क्या भेजा है? So that means अभी 25 into 90 into 90 क्या आएगा इसका आंसर? Okay, so this comes out to be rupees 2,02,500. Okay, इसको solve करेंगे. This is the amount, final value 2,02,000. Initially it was 2,50,000. तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या पूछा है कि what is asked, what is the final value और क्या है देखते हैं. Find the depreciation in price of the machine after 2 years. मतलब हम लोग को ढूंढना है कि how much कितना प्राइस गिरा है मशीन का 2 साल में. ओके, ये नहीं पूछा है कि मशीन का प्राइस क्या है 2 साल. माइनस अमाउंट करना पड़ेगा सर. हाँ करेक्ट, वेरी गुड. सो प्राइस तो ऐसे थोड़ा लिख सकते हो, डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 years is equal to principal minus amount. Okay, so मतलब 2,50,000 minus 2,02,500. Okay, तो अभी इसका आंसर कितना होगा? It should be 47,500. Okay, rupees 47,500. This is the answer. कि क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्या पूछा है. तो द मशीन का देखो, अभी समझो क्या हुआ है. बेसिकली मशीन का प्राइस था 2,50,000 एंड वो डिप्रिसिएट होता है एट अ 10% रेट. तो मतलब द प्राइस ऑफ दैट मशीन आफ्टर 2 years इज 2,02,500. तो डिप्रिसिएशन विल बी हाउ मच इज द रिड्यूस इन प्राइस, वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. जो बड़ा है बिग माइनस स्मॉल, दैट इज प्रिंसिपल माइनस अमाउंट. सो दैट इज 47,500. दिस इज द आंसर. ओके, ये भी अभी इजी था काफी, मतलब बस फॉर्मूला ही याद रखना है, उसमें प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. ओके या आर्यन, वेरी गुड. हाँ या ओके गुड. ओके तृष्णा, गुड. या एवरीवन एल्स आल्सो. ठीक है, सो ये हो गया अभी. नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, क्या है? Find the compound interest if the amount of a certain principal after 2 years is 4036.80 at the rate 16% per annum. ठीक है, तो एक मिनट, fourth is done, now fifth. Whoever is watching video, pause करो और question पढ़ो पूरा and try to solve it, then only go ahead to see the answer. Okay. ठीक है, so ये question देख लिया सबने. Now let's start. Okay. Fifth. Find the common interest if the amount of a certain principal. तो amount दिया है, ठीक है. इस क्वेश्चन में the amount is given which is rupees 4036.80. Rate is कितना? 16% and n is 2 years. देखो 2 years सब कुछ क्वेश्चन में दिया है. अगर पहली बार में you don't understand, read the question again, everything will be given. So principal क्या है? That is asked, question mark, question mark, question mark, triple question mark. ठीक है, तो A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N. Okay, and so अभी बस जो values दिए हैं सबको substitute करना है. तो amount दिया है, वापस बोल रहा हूँ, 4036.80 is equal to principal को we'll add as P only to 1 plus 16 upon 100 raised to 2. So let's see, 4036.80 equals to now P into now 1 plus 16 upon 100. इसको LCM ढूंढो और ये करो. अभी वापस नहीं करूंगा मैं. 116 upon 100 into 2.
So this becomes 4036.80 is equal to P into 116 upon 100 into 116 upon 100. तो अभी now we need to find the principal. ये हम लोग को ढूंढना है. So हम लोग जो राइट हैंड साइड है उसको सब लेफ्ट पे लेके जाएंगे. So this so सब रेसिप्रोकेट हो जाएगा. मतलब this becomes what is getting divided. If you take it on the other side with the equal to sign, वो multiply हो जाएगा. So that means into 100 upon 116 into 100 upon 116, ठीक है, is equal to P. तो बस अभी इसको solve करना है. अभी वापस ये simplify मैं नहीं करूँगा, that you all only have to do. So ठीक है, so therefore principal is how much? देखो बस देखो 100 and 116 4 के टेबल में जाते हैं. So 25 29 then again 25 29. अभी ये 29 and 4036.80 देखो होगा. ठीक है. So finally इसका answer once you solved it, if you solve it correctly, the principal is rupees 1036.80. okay. तो बस हो गया क्वेश्चन. दिस इज द फाइनल आंसर जो सॉल्व करने के बाद आएगा. ओके तो हो गया. देखो प्रिंसिपल इज 1036 एंड फाइनली अमाउंट इज 4036. एंड देखो 2 साल में एट अ रेट ऑफ 16% इट हैज इंक्रीज टू दिस मच. सो मतलब ये भी चेक हो गया कि जो इनिशियल प्रिंसिपल था दैट वाज लेस देन, डेफिनेटली लेस देन द अमाउंट. सो ये मतलब हम लोग ने चेक भी कर लिया द आंसर इज करेक्ट. ओके सो नाउ फिफ्थ इज आल्सो डन. हाँ क्या हुआ? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस तृष्णा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके गुड. ठीक है. तो फिफ्थ इज आल्सो डन नाउ. नाउ 6 7 8 तीन ही बचे हैं. सो a loan of rupees 15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12%, find the amount to settle the loan after 3 years. तो ये भी काफी easy question है actually. A loan of 15,000, okay. So principal will be 15,000. The rate is 12%, and find the amount to settle after 3 years. N is 3 years. R is 12%. Principal is 15,000. तो बस अमाउंट का फॉर्मूला डालना है. सिंपल है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है. ऐसे वीडियो पॉज करो, 2 मिनट ही लगेगा करने को. तो बस फॉर्मूला डालना है. A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to n और हो जाएगा. ओके ये तो काफी इजी वाला था. 6 समझा ना ये सबको? देखो P you take as 15,000, P R is 12%, N is 3 years. देखो ये सब मेरे को अभी इतना इजी नहीं करना है ना यार. ऐसे 8th स्टैंडर्ड में तो अभी होना चाहिए. ठीक है. ओके नेक्स्ट. A principal amounts to rupees 13,924 in 2 years by compound interest. ओके तो देखो ये 5th क्वेश्चन और ये सेम है. प्रिंसिपल अमाउंट्स टू मतलब अमाउंट इज 13,924. N is 2 years. 2 years. Rate is 18%. तो देखो जैसे मैंने और P ढूंढना है. P is क्वेश्चन मार्क. तो जैसे मैंने 5th किया वैसे सेम टाइप का ही है. देखो प्रिंसिपल यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है. सो वी पुट इन द फॉर्मूला एंड बस प्रिंसिपल ही ढूंढना है. कैलकुलेशन हो जाएगा. तो अमाउंट की जगह पे डालना है हाउ मच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड मतलब सिंपल है. ओके आफ्टर 2 years N is 2, rate is 18%. ठीक है. बस सिंपल. ओके नेक्स्ट. This is the last question. The population of a suburb is 16,000. Find the rate of increase in the population if the population after 2 years is 17,640. Okay. तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है पहले. So we'll do this type. Just a minute. Okay, wait. 1 second. Okay. Okay. Everyone's back. Let's just start now.
let's continue. ठीक है, so till now I was telling about the seventh question. A principal amounts to rupees, this amount is given, this is the amount in 2 years and rate is 18%. principal ढूंढना है, it's the same as the fifth. ठीक है, तो मतलब ये अभी कर लो. Whoever's watching can again pause and then do it. And now we'll do the eighth one. Okay, eighth थोड़ा अच्छा है तो उस पे we'll do it properly. So I'll give her 1 minute, 10 seconds actually to solve till the seventh. Up tak 1 to 7 we've discussed like all properly and few we've solved also. Okay. Okay, so let's go ahead now with the eighth type. Question number 8. I'm gonna write the question तो because ये अच्छा type का question है, ये सबको आना चाहिए. 8. Okay, इसके ऊपर भी like you can put 3 stars. Okay, so question लिखो सब. The population of a suburb is 16,000. Okay, the population is 16,000. Find the rate of increase in the population. Okay. Find the rate of increase in the population. Find the rate of increase in the population if the population after 2 years is 17,640. 17,640. Okay, ये बस. Okay, once you've copied the question, then let's start. Answer. So let's read it. The population initially, population of this place of a suburb is 16,000, and after 2 years, the population becomes 70,400. हम लोग को क्या do that? Find the rate of increase. Okay, so ये अभी हम लोग will look at it in terms of money. ठीक है, तो that will be principal is 16,000. Amount मतलब कितना बन गया after 2 years? 17,640. And the n is nothing but 2 years. N is 2 years. Okay, so rate is question mark. Okay, तो अभी सब फॉर्मूला में डालते हैं. P sorry, A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to n. Okay, now let's substitute all the values. 17640 is equal to 16,000 into 1 plus R को R ही लिखेंगे because that is what we don't know, raised to 2. Okay, so अभी now क्या करेंगे इस पे? कुछ simplify ज़्यादा हो नहीं सकता. This 16,000 we can take it down. देखो 16,000 is getting multiplied with this whole bracket, so that means if we take it on the left side वो divide हो जाएगा. So it becomes 17640 upon 16,000 is equal to 1 plus R upon 100 the whole square. So now देखो 1 0 cut, 1 0 cut. So this becomes 1764 upon 1600 is equal to 1 plus R upon 100 whole square. Okay. So now this 1764 and 1600 divided by 2 करते हैं, divide by 2. So this is 800 divided by 2. This is let's see, this is 882. Okay, now we'll divide again. 882 and 800 again 2 के टेबल में आएगा. This is 400 and अगर तुम लोग divide करोगे अच्छे से तो this is 441. So this becomes 441 upon 400 is equal to 1 plus R upon 100 the whole square. Okay, now तो अभी तुम लोग को ये देख के ऐसे थोड़ा confusion होगा, but if you learn from 1 to 20 or like 1 to 25 all the squares and square roots na,
तो देखा जाएगा तो इफ यू नोटिस 441 इज नथिंग बट 21 का स्क्वायर एंड 400 इज 20 का स्क्वायर. ओके, सो लेट्स कीप दिस इन माइंड. एंड अभी हम लोग ये मतलब थोड़ा थोड़ा तुम लोग को प्रैक्टिस के साथ ही आएगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्क्वायर रूट बोथ साइड्स. क्या करेंगे? स्क्वायर रूट, बिकॉज हम लोग को वी नो दैट दिस इज 441 की जगह पे वी कैन राइट 21 square. If you all do it also, you all can check. ठीक है? And this is 20 square is equal to 1 plus r upon 100 the whole square. ठीक है? So now if we take a square root on both sides, now we'll square root this and square root this. So 21 square को if we square root it, that is nothing but 21 upon 20 only, ना? And this 1 plus r upon 100 whole square is nothing but 1 plus r upon 100. ऐसे. ये समझा तृष्णा? Others also बोलो. ये थोड़ा Yes, sir. ओके, ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आएगा. बट इफ यू स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू बी लेफ्ट. एंड यहाँ से इजी है, देखो ये फ्रैक्शन है बेसिकली. सो we take one on the other side. So this is 21 upon 20 minus 1 is equal to r upon 100. And now we'll take LCM. So this is 21 minus 20 upon 20 is equal to r upon 100. And 21 minus 20 is nothing but 1 upon 20 is equal to r upon 100. And ये 100 को जो नीचे है we'll take it up. So this is 100 upon 20 is equal to r. And how much is 100 upon 20? 0, 0 cut. 2 ones are 2, 2 5s are. Therefore, rate is 5%. This is the answer. The rate of interest is nothing but 5%. ये देख लो अच्छे से. And इस पे थोड़ा टाइम लगेगा this to understand this method, but थोड़ा प्रैक्टिस के साथ अभी होमवर्क में there will be such type of questions, so you can do it. ठीक है? देखो, just to explain once again basically what I did. पहले ये लिख लो, ठीक है? Final answer rate is 5%. I'll wait for some time till you all copy this. सर मैंने लिख लिया है. अच्छा लिख लिया, ठीक है, चलो गुड. तो ठीक है, बाकी लोग they can pause and just see. तो देखो ये क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो इनिशियल था दैट इज 16,000 और फाइनली दैट बिकेम 17,640. तो हम लोग को क्या ढूंढना है? व्हाट रेट इज इट इंक्रीजिंग एट? सो ये p 16,000, दिस इज 17640, n is 2 years. तो फॉर्मूला यूज किया, सब्स्टिट्यूट किया इन दैट, देन दिस यहाँ पे कुछ और करने को है नहीं. सो वी जस्ट डिवाइड 16,000 अपॉन दिस, मतलब ठीक है. So after cutting, we are left with this 441 upon 400 is equal to 1 plus r upon 100 whole square. And if you all learn the squares from 1 to 25, तो तुम लोग को ये पता हो जाएगा that 21 square is nothing but 441 and 20 square is 400. So that is how you recognize. ऐसे patterns तुम लोग को recognize हो जाएंगे कि okay इसमें square root करना है both sides को. So if we do that, then this 21 square is देखो 21 square का square root लेंगे तो this is nothing but 21 only. Like देखो 5 square is how much? 25 and 25 का square root is how much? 5. So देखा जाए तो square root of 5 square is the same thing as writing 5. ऐसे आया है. Okay, इस पे थोड़ा सोचोगे तो you will understand yourself. So that is how we got 21 upon 20 is equal to 1 plus r upon 100. And 1 को वो साइड पे लेके जाएंगे. इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में भी यही कर रहे थे. सो टेक एलसीएम एंड देन बस सब्ट्रैक्ट करो एंड 100 को ऊपर लेके आओ यहाँ पे. तो 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर. 0 0 कट एंड 2 1s are 2 5s are. तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज. तो therefore rate of increase in population is 5%. Okay, हो गया 5%. Easy. चलो
बस ये जिसने भी नहीं लिखा है वो लिख लो, एंड इसके बाद एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, देन वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस. सर हो गया. ओके ठीक है चलो. ओके बस ये लास्ट क्वेश्चन है. ये अभी जो चैप्टर के हम लोग के बेसिक्स तो हो गए, तो नाउ वील डू थोड़ा लाइक few tough questions are only left. That's all. Find the number of years for which the compound interest of rupees 9,000 is rupees 1890 at the rate of 10%. Okay, तो क्या पूछा है कि find the number of years n for which the compound interest, जो if a principal is rupees 9,000 तो वो compound interest जितना आता है, compound interest is what, amount minus principal, so that compound interest is rupees 1890 at the rate of 10%. Okay, so लिख लो pause करके and let's start now discussing. So compound interest of rupees 9,000, the principal is rupees 9,000, compound interest is rupees 1890, and an amount is what, principal plus the interest. Now that is the total amount to be paid, which will be in this case 9,000 plus 1890. So this is how much, rupees 10,890. तो ये भी amount भी आ गया, because we know amount is the initial amount, value, initial principal plus जितना बढ़ा, that interest, so that is amount, and rate is 10%. So R is 10%. क्या ढूंढना है, number of years, n is question mark. Okay, तो ये question mark है. Now let's see, ये सब formula में substitute करना है, and then we need to try to see कि what is missing. यहाँ पे जो n है बस उसको ही ढूंढना है. So let's go. A is equal to P1 plus R upon 100 raised to n. So amount is 10,890. देखो जो amount is this is equal to principal is how much, 9,000, वो question में दिया है, into 1 plus, now rate is 10, 1 plus 10 upon 100, now raised to n. This n is the question mark. ये n ही ढूंढना है, सब कुछ everything else is given, everything else is known, n is the only unknown. Okay, so now we'll bring this 9,000 down here, how we've done in the previous question. So 10,890 upon 9,000 is equal to 1 plus 10 upon 100 raised to n, and 10 upon 100 देखो 0 cut, so 1 1, and देखो right side पे if we take LCM of 1 plus 1 upon 10, that is nothing but LCM लेंगे तो that becomes 11 upon 10 raised to n, right? तो ये right side जितना हम लोग ने simplify कर सकते थे उतना किया. Now we'll simplify the left side. So 0 cut, so now this is 1089 upon 900. So now इसको बस simplify करना है, and you can see that these both go in 3's table. So let's divide it by 3. So 3 divided by 900 divided by 3 is 300, and this is how much, 1089 is 363. ये तुम लोग को करना है. ओके, ये मतलब don't just blindly copy, इसको करो ऐसे 1089 divided by 3, and now again both go in 3's table. So divided by 3 is 100 and divided by 3 is 121.
वापस ये तुम लोग को खुद करना है. So 121 upon 100 is equal to 11 upon 10 raised to n. And याद है मैंने क्या लिखा था ऊपर, ये वापस learn squares from 1 to 25. Okay, so if you have learned it, then you would know that 121 and 100 are perfect. They are squares of some numbers. So 121 is 11 ka square, 11 square upon, and 100 is 10 ka square, is equal to now 11 upon 10 raised to n. So now this can be written as 11 upon 10 square is equal to 11 upon 10 raised to n, right? And if you have done this exponents chapter जो काफी किया होगा बचपन में, so उससे you all would know that इसको कैसे करते हैं आगे. You need to write like this कि as bases are equal, देखो, so 11 upon 10 square is equal to 11 upon 10 raised to n, तो इसको compare करेंगे, therefore n equals to 2. See, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे n है, बाकी सब same है. That's like saying ये ऐसे हुआ कि 5 multiplied by 5 is equal to 5 multiplied by some number n. So that n has to be this only, not what is missing, which is 5. So same way here, 2 is equal to n. n is equal to 2. So same way, okay. So n is equal to 2 years. ये नहीं समझा तो बस इसको वापस देख लेना. और ये जो एक्सपोनेंट्स में से जैसे इंडाइसेस में करते थे एज बेसिस, दिस होल थिंग, दिस होल जो 11 अपॉन 10 ये दोनों में सेम है ना, तो बाकी भी सेम होना चाहिए बिकॉज there's an equal to sign. So that's why n2 is equal to n हो जाएगा. So n is equal to 2 years. So let's see the question once. Find the number of years for which the compound interest. So therefore we found the years. It takes 2 years. Okay. It takes 2 years for the compound interest to increase from, I said, 9,000 to give a compound interest of rupees 1890. ठीक है? So now this also तुम लोग को समझा ही होगा. And yeah, with this, just go through this once. If you didn't understand, rewind करके वापस देख लो. Okay. So okay, I hope you've copied all this. हो गया copy करके? Yes, sir. Okay. ठीक है. So with this, we've completed like all types of questions in compound interest. And but now I'll send the homework. So just do that, and I think yeah, then next time we'll discuss the homework in the start. And with this, we should be done with the chapter then. Okay. Okay then, yeah.